हाँ जी बई पंम ढिल्लो तुसी बहुत हसदे सी है ना मेरी कन्न पट्टी तो ਉਹ ਨਾ 2 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਕੋਲਡ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਠਰਦਾ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ 2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹਨਾ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਠੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 7th ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ NCERT ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल जबकि अपनी बुक ते पहला चैप्टर हैगा वा कदों किथे अते किवें ठीक है जमीन आसमान दा फर्क है इस बुक दे विच ते इस बुक दे विच ठीक है पहले 2 पेज आपां पढ़ लए सी उस तो बाद जिहड़ा वा आपां इहदा जिहड़ा वा NCERT दा अज अपनी लास्ट वीडियो आ ठीक है क्योंकि मैं मतलब कल मैं 2 वीडियो अपलोड करतियां सी 2 पार्ट ठीक है पार्ट दूजा ते पार्ट तीजा जिहड़ा वा मिक्के दिन ही अपलोड करते सी मैनू ये ही कि ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 5 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਣਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨਾ ਬਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਸਮਾਰਕ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡੂ ਲਿਪੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਹਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸੌਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ समय और कालखंडों के विचार समय इतिहास के कालखंडों के विचार सब तो पहला आप अपनी पंजाब बोर्ड की बुक तो पढ़ते हैं भी इन्होंने की लिखा वा ठीक है इन्होंने लिखा मध्यकालीन युग दौरान यात्रियों द्वारा लिखे गए लेख होर महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं इस समय दौरान भारत की यात्रा करते हुए मुस्लिम यात्रियों ने भी लेख लिखे सन जिवें कि इबन बतूता दे किताब उल रहेला लेख विच मुहम्मद बिन तुगलक दे राजकाल बारे जानकारी मिलती है अल बरूनी ने भी भारत विच अपने ठहरन संबंधी लेख लिखिया सी अब्दुल रजाक ने विजयनगर राज की यात्रा की उस समय राज की मौजूदा स्थिति बारे लेख लिखिया इस तो इलावा यूरोपीयन यात्रियों ने भारत में अपनी यात्रा समय लेख लिखे लेख विच उस समय भारत की दशा बारे जानकारी मिलती है यानी कि कहने का भाव कि जिहड़े विदेशी इतिहासकार आए साडे देश दे विच उन्हां ने उस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा वा साडे भारत का इतिहास लिखिया कल जदों पार्ट तीजे दे विच आपां गियासुद्दीन बलबन बारे पढ़िया सी है ना गियासुद्दीन बलबन बारे ना जिहड़ा हैगा सी अपना जियाउद्दीन बरनी है ना उन्हें कुछ गियासुद्दीन बलबन बारे लिखिया सी है ना ओहदा अपना एक पॉइंट छुट गया सी एक तां मैं तुहानूं दस्सिया ही कि गियासुद्दीन बलबन दे शासन काल दे विच किहड़े-किहड़े शहर ही जादे ओहदे विचों इंपॉर्टेंट मैं तुहानूं दस्से सी ठीक है ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗਾ ਗੌੜ ਕੇਰਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਗੌੜ ਕੇਰਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ 1 2 3 4 5 6 ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਪ੍ਰਾਂਤ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਸੁद्दीन ਬਲਬਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਯੁੱਗ ਬਾਰੇ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਤਥਾ ਖੇਤਰ ਹਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹने कहा कि ਜਿਹੜੀ संस्कृत भाषा ही, अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, ये एक प्राचीन भाषा जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते सी। देखो ਸਾਨੂੰ संस्कृत भाषा बारे कितनी विशेष जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो ने यह गल कही आ, अमीर खुसरो ने कहा कि ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾ ਹਨਾ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਆ ਉਹੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ हाँ, फिर अगे आप पढ़ते हैं, कहते कि सन 700 तक कई क्षेत्रों ने अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 7 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ठीक है जी, यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थी। कभी कभी चौल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। यह सभी समाज समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। 18वीं सदी के मुगल वंश पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। अध्याय 8 लेकिन वर्षों से जो स्वैं क्षेत्रीय समाजों का शासन चल रहा था उसने क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले और इन क्षेत्रों की विरासत में मिली थी। कहने का भाव कि समझो इस चीज ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਖਿਲਜੀ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੰਸ਼ ਆਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਸੱਤਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹਨਾ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੇਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਵੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਫੇਰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। फिर कहते इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। उन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपरा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के 1000 वर्ष में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से हटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर सामान्य भी स्वैं क्षेत्र ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। कहने का मतलब है हाँ, इन्हां दे कहने का मतलब यह आ, ये कहते हैं कि मान लो कोई खेतर आ हना, कोई राजा आया उठ के उत्थे शासन कर लग गया है ना, पर यह है कि जेड़ा वो खेतर आ उथों दियां जो भी उन्हां दियां पहलियां परंपरावां, जो उन्हां दे रीति रिवाज आ, जो उन्हां दा फाइनल स्ट्रक्चर है ना, वो राजा आके उन्हूं चेंज नहीं करूगा, जद कि उल्टा राजा उन्हां चीज़ां नूं अडॉप्ट करूगा। लगी ना समझ, यानी कि उन्हां दियां जिहड़ियां पुराणियां परंपरावां सी उन्हां दा असर सगों राजियां ते पिया, ना कि राजियां ने उन्हां नूं जाके बदलिया। क्लीयर ये चीज़ इन्हां ने कही आ।
ठीक है। पर इत्थे इन्हां ने सानू कुछ भी नहीं दस्सिया, बस इन्हां ने विदेश यात्री जिहड़े आए आ उन्हां बारे इन्हां ने आपां नू दसता वा। एक वारी आपां लिख लैने आ। इन्हां ने इबन बतूता बारे दस्सिया वा। ये कहंदे कि जिहड़ा इबन बतूता सी है ना, जिहड़ा इबन बतूता सी है ना, इबन बतूता बारे आपां एक वारी पढ़ लैने आ। कहंदे इबन बतूता दी इहदी इबन बतूता दी एक किताब आ, किताब दा नाम इन्हां ने लिखिया वा किताब किताब उल रहेला। किताब उल रहेला कहंदे जिहड़ी इबन बतूता दी किताब उल रहेला ही, इहदे विच इहने किहने बारे लिखिया, मुहम्मद तुगलक दे बारे। ठीक है, मुहम्मद तुगलक दे बारे इहने लिखिया सी। इह तुसीं याद रखियो, मुहम्मद तुगलक दे बारे इहने लिखिया सी। फिर इन्हां ने अलबरूनी ने दस्से, अलबरूनी बारे लिखिया वा। अलबरूनी ने भी भारत विच अपने ठहरन संबंधी लेख लिखिया। अब्दुल रजाक ने विजयनगर दी राज दी यात्रा कीती। ठीक है, अलबरूनी। ठीक है, अगे तुसीं लिख लो अलबरूनी बारे। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਆ, अलबरूनी ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਅਗਲਾ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, अब्दुल रजाक बारे ये दसदे आ। अब्दुल रजाक ने विजयनगर राज दी, ठीक है, विजयनगर राज अगे जाके आपां पढ़ांगे विजयनगर राज। ठीक है, विजयनगर राज दी इन्हें की कीती सी यात्रा। विजयनगर राज यात्रा मैं लिख दिन्नी आ। ठीक है, शॉर्ट दे विच। ठीक है, विजयनगर राज की यात्रा की सी किने, अब्दुल रजाक ने। आ जिहड़ा 3 लाइनां मैं तुहानूं लिखाईआं वा, ये साडी पंजाब बोर्ड की बुक दे विच लिखिया वा। ठीक है, ये साडी पंजाब बोर्ड की बुक दे विच लिखिया वा। फिर ये कहंदे आ चित्रकारी दे नाल-नाल संगीत भी इतिहासक जानकारी प्राप्त करन दा एक चंगा स्रोत सी। मुगल शासक संगीत दे बहुत प्रेमी सन। कहंदे भी जिहड़े मुगल शासक सीगे ਉਹ ਜਿਹੜੇ संगीत ਦੇ बहुत ज़्यादा प्रेमी सी। ਇਹ लाइन तुसीं याद रखनी आ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ कि मुगल सी ਉਹ डैश ਦੇ ज़्यादा प्रेमी सन। ठीक है, ਉੱਥੇ संगीत लिखिया जा सकदा वा, शस्त्र चलाउण बारे कुछ भी लिखिया जा सकदा। तुसीं याद रखना भी ये ਜਿਹੜੇ मुगल सी संगीत ਦੇ ज़्यादा प्रेमी सन, इसलिए उन्हां दे राजकाल विच संगीत दा बहुत विकास होया। जे वो संगीत दे प्रेमी सी ते ऑब्वियसली उन्हां दे विकास होना ही सी म्यूजिक दा। ठीक है, ये फिर ही कहंदे आ, कहंदे अकबर मुगल शासक ने बहुत सारे संगीतकारां दी सरपरस्ती कीती। उन्हां विचों तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार सी। हुण तुसीं की याद रखना वा भी जिहड़ा तानसेन जिहड़ा सी ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ शासन काल ਦੇ ਵਿੱਚ प्रसिद्ध संगीतकार सी, अकबर ਦੇ शासन काल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, पॉइंट तुसीं नोट कर लियो। ठीक है, ਜਿਹੜਾ तानसेन सी, तानसेन कौन सी, तानसेन तो मैनूं एक चेता आ गया, दसदी हां तुहानूं मैं। जेकर मतलब मेरी एक फ्रेंड आ है ना राजवीर, मतलब असीं इकट्ठियां ने BEd कीती आ ते असीं ना मतलब मैं मोगे तो BEd कीती होस्टल च है ना। ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਨਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ BEd ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ SST ਪੰਜਾਬੀ, ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਨਸੇਨ ਕੌਣ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਤਾਨਸੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਨਸੇਨ। ਮਤਲਬ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਸੇਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ। ठीक है, ਉਹਦੀ मैरिज हो गई, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਸੇਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਾਨਸੇਨ ਬਾਰੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਤਾਨਸੇਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਸੇਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ शासन काल ਦੇ ਵਿੱਚ, अकबर ਦੇ शासन काल ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ पॉइंट ਤੁਸੀਂ ਨੇ याद रखने आ। ठीक है, बस इन्होंने वेखो अगे चैप्टर खत्म करता। बस इन्होंने किन्ना क डाटा दिता, इन्होंने विदेश यात्रियों बारे दसता, इबन बतूता बारे, अलबरूनी बारे, अब्दुल रजाक ते तानसेन बारे दसता। फिर इन्होंने साहित्यिक स्रोत दे ते शिलालेख दे ते पुरातन स्रोत दे ते, हना। बस ये कुछ इन्होंने पंजाब बोर्ड की बुक दे विच दिता वा। ते मैं तुहानूं एक वारी दसदी हां भी आपां इहदे विच की पढ़िया। इहदे विच इन्होंने नक्शियां बारे दस्सिया भी नक्शे किद्दां बने। फिर इन्होंने दस्सिया कि जातियां किद्दां बणियां। फिर इन्होंने दस्सिया कि इतिहास नूं किवें लिखिया जाण लगा,
ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇ, ਹਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਅਲੱਗ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ NCERT ਜਿਹੜੀ ਆ SST ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੀ NCERT ਬੁੱਕ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਬਾਰੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖੂੰਗੀ। ठीक है, ये पॉइंट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कहते इतिहासकार समय को केवल एक घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्तित्व है रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यानी कि कहने का मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ, ਇੱਕ ਆਪੋਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੋਚੂਗਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, 23 ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, 24 ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਨਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ यदि अतीत के समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी कि कहने का भाव कि कहते भी जे इतिहास नूं कुछ काल खंडां दे विच वंड दिता जावे कि इतिहास नूं पढ़ना जिहड़ा वा वो सौखा हो जांदा वा। कहने का मतलब कि जिवें हुण साडे कोल इतिहास आ, ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੰਡੀ? ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ 3 ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਆ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਵਲ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਆ। ਠੀਕ ਆ, फिर ये कहते कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। 1000% इंपॉर्टेंट जेड़ा पॉइंट मैं तुहानू हुण लिखाउण जा रही हाँ, अंग्रेजी इतिहासकार, इहदा नाम नहीं इन्होंने दिता, अंग्रेजी इतिहासकार। ठीक है, अंग्रेजी इतिहासकार इन्हें जिहड़ा वा 3 कालां दे विच जिहड़ा सीगा भारत नूं वंडिया सीगा, भारत दे इतिहास नूं। एक इन्हां ने वंडिया सीगा हिंदू, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम ते ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम ते ब्रिटिश। ये पॉइंट तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ये CTET दे पेपर विच पुछया गया वा, SST पोर्शन दे विच, CTET दे पोर्शन दे विच ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ, हिंदू, मुस्लिम ते ब्रिटिश। ਇਹ वाले 3 काल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ वंडिया सीगा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप को अपार विविधता की भी अपेक्षा हो जाती है। यानी कि कहने का भाव कि कहते भी शासकों का धर्म ही एकमात्र जिहड़ा वा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਵਾ। यानी कि जिन्ने भी शासक आए, किसी ने बुद्ध धर्म ਨੂੰ ज्वाइन ਕੀਤਾ, हना,
किसी ने जैन धर्म ਨੂੰ ज्वाइन किया। सो ये मतलब इन्होंने कहने का, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। कहने का भाव भी अंग्रेजी इतिहासकारां ने साडे इतिहास नूं आह वाले जिहड़े 3 कालखंडां दे विच वंडिया ही, इन्हां नूं साडे इतिहासकार नहीं मानते। ठीक है, नहीं मानते। हुण तुहानूं क्वेश्चन किद्दां सानूं पेपर दे विच आ सकदा वा, समझो। एक हुंदा वा बंदा बस थ्योरी कराई जावे, पर एक बंदा इदां दा हुंदा वा जिन्नूं थ्योरी पढ़ के ये पता लग जांदा कि इहदे चों MCQ किद्दां आउणे आ। सो तुसीं जिहड़े मेरे चैनल ते जिहड़े आए उन्हां दा बहुत ही ज़्यादा फायदा होण वाला। हुण सानूं इहदे विच क्वेश्चन आउणा वा, इन्हां ने दसना वा हेठां लिखे कारण, जिद्दां एक साइड ते सानूं कारण दित्ता हुंदा, एक साइड ते सानूं रीजन दित्ता हुंदा। इन्हां ने कहना वा अंग्रेजी इतिहासकार ने भारती इतिहास नूं 3 कालखंडां दे विच वंडिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। फिर इन्हां ने थल्ले आर लिख के दे देना वा, आर लिख के यानी कि रीजन इन्हां ने देना वा। अज दे साडे भारती इतिहासकार इस कालखंड नूं नहीं मानते, ते इहदा आंसर इन्हां दा भी AR दे सही व्याख्या करदा वा, A सही आ, B गलत आ, B सही आ, A गलत आ। इदां करके तुहानूं पता लग गया भी अंग्रेजी इतिहासकारां ने ये वाले 3 कालखंडां दे विच वंडिया ते साडे भारती इहनूं नहीं सी मानते। क्लीयर, ठीक है। फिर ये कहते पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्यों और समाज। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। यानी कि वो बच्चे नूं कह रहे आ कि पहला तुसीं 6वीं क्लास दे विच एशियन हिस्ट्री पढ़ के आए हो ते हुण तुसीं इत्थे की पढ़ोगे, हुण तुसीं मध्यकालीन इतिहास बारे पढ़ोगे। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। सानू पता ही है, असं मेडिकल हिस्ट्री दे विच यही कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं रीडिंग करी जा रही हूँ, ਜਿਹੜਾ पॉइंट अपने लिए जरूरी है मैं बोर्ड ते लिखूंगी, तुसी कंसनट्रेट करना वा। रीडिंग मैं तां कर रही हूँ तुहाडे सामने कि जेकर तुसी मेरे चैनल ते आए हो तो तुहानू अपने आप ते कॉन्फिडेंस हो जाए भी मैं NCERT दा कल्ला कल्ला चैप्टर, कल्ली कल्ली लाइन पढ़ी आ। ठीक है, फिर वेखो, फिर कहते हैं कि भारत के इतिहास के यह 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों, 8वीं या 11वीं शताब्दी में काफी भिन्न है। यानी कि कहते भी भारत के इतिहास दे विच बड़े बदलाव आउंदे रहे। कहते 16वीं ते 18वीं सदी जिहड़ी आ वो 8वीं ते 11वीं सदी नालों बिल्कुल भिन्न आ, मिलदी नहीं आ। इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं। कहते भी इस सारे इतिहास नूं पढ़ना, उन्नू एक क्रम दे विच लिखना सौखा काम नहीं। ठीक है, फिर कहते कि मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से भी की जाती है। यानी कि कहते मध्यकालीन की तुलना जिहड़ी आ आधुनिक काल दे नाल कीती जाती। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ, क्योंकि काफी चेंजेस आए सी एशियन हिस्ट्री दे विचों ते मेडिवल हिस्ट्री तक काफी चेंज लोगों दे विच आके सी। ठीक है, इसमें आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। यानी कि कहते भी मध्यकाल जिहड़ा वा रूढ़िवादी सी, कोई चेंज नहीं होया, पर कहते आपां जानते हैं भी इदां दा कुछ नहीं है, क्योंकि आपां पढ़ रहे हैं इदां दा कुछ नहीं। कई जातियां उभर के आईयां, कई धर्म जिहड़े आ उभर के आए। ठीक है, किन्ना जिहड़ा विकास होया, लोग खेती करन लग गए, जंगलां नूं कट के जमीनां बनाईयां, तो फिर आप रूढ़िवादी किवें कह सकते हैं। ठीक है, यही चीज ये कह रहे हैं। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों के प्राय परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। बस इत्थों ही असली कहानी जिहड़ी साडी शुरू हुंदी आ कि जिहड़ियां यूरोप कंपनियां वा उधरों जी केरल पहुंच गए, मसाले वेख के मर गए, हना पुर्तगाली जिहड़े आए इत्थों ही। यानी कि यूरोप जिहड़े यूरोप दे लोग, यूरोप कंपनियां सीगियां, उन्हां दा भारत वाल झुकाव हो गया, आकर्षित हो गए। ठीक है, इत्थों ही साडी असली कहानी शुरू हुंदी आ। ठीक है, फिर ये कहते इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के
तथा यह सक्रिय इतिहासक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले। ते वेखो भी सब तो पहला तो इन्हें दसा नक्शे किद्दां बने, जातियां किद्दां बनियां, धर्म किद्दां बने, राजियां दे शासन किद्दां आए, हौली हौली बाहरलियां कंपनियां किद्दां साडे एस्टैबलिश होईयां। ते कहंदे तुसीं ध्यान दिंदे चलो भी तुसीं अगे अगे की पढ़ोगे साडे इतिहास बारे, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं इसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। यानी कि बच्चे नूं कह रहे हैगी तां बुक बच्चे वास्ते आ, कहंदे भी 6वीं क्लास दे विच तुसीं जो इतिहास पढ़िया ते हुण तुसीं पढ़ रहे हो, तुसीं एनालिसिस करना वा कि पहला नालों हुण किवें चेंज आए। ठीक है, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। ठीक है, ये बच्चे वास्ते कह रहे हैं। ठीक है, बस इन्ना साडा चैप्टर सीगा, ये चैप्टर साडा हो गया वा खत्म। ठीक है, मैं कहा सी कि अज जिहड़ा अपना 4 पार्ट दे विच अपना ये जिहड़ा वा पहला चैप्टर है NCERT का 7वीं क्लास का, ये खत्म हुंदा वा। 1 मिनट मैं देख ला भी कुछ रह तां नहीं गया। हाँ, एक पॉइंट साडा रह गया, वो हैगा वा नवे अते पुराने धर्म। ठीक है, नवे अते पुराने धर्म। ठीक है, इत्थे लिख दिंदी हां, मैं अगे कह रही सी कुछ छुट गया, पुराने अते नवे धर्म। ठीक है, इहदे विच आपां एक पढ़ लैने एक करी कि की कहंदे, जिहड़ी कोई इंपॉर्टेंट होई आपां लिख लवांगे। कहंदे इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, यानी कि साडे चैप्टर का नाम की आ हजारों वर्ष हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत सत्र पर होती थी, मगर आमतौर पर इन आस्था का स्वरूप समूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में समूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। वेखो जिवें हिंदू धर्म है हना, मतलब अज भी हुण भी साडे चैनल दे नाल कुछ हिंदू धर्म दे बच्चे भी जुड़े होणगे हना। कहंदा वा भी कहंदे भी हिंदू धर्म दे विच बड़े चेंज आए समय दे नाल नाल। हुण जिवें नराते आउंदे आ, नरातियां दे विच अलग-अलग देवियां दी जिहड़ी आ पूजा कीती जांदी है। ठीक है, कहंदे कि नवे-नवे देवी देवतियां दी जिहड़ी पूजा कीती जांदी है। जिहड़े राजे आए उन्हां ने हिंदू धर्म नूं बड़ा डेवलप कीता, मंदिर बनाए, मस्जिदां बनाईयां, मंदिरां दे विच मूर्तियां दा निर्माण कीता, मतलब कि लोकां दी सिंपति लैण वास्ते। ठीक है, फिर इन्होंने क्या, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। हाँ, जेड़ा मैं तुहानू दस्सिया सी ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं तुहानू दस्सिया कि संस्कृत जिहड़ी आ, किने कहा सी, मीर खुसरो ने कहा कि जिहड़ी संस्कृत भाषा वा वो किसी विशेष खेत्र की भाषा नहीं आ, वो सिर्फ एक प्राचीन भाषा सी ते ओनू जिहड़े सीगे ब्राह्मण लोग ज्यादा जानते सी। ते इत्थे इन्हां ने कहा भी ये जिहड़े ब्राह्मण लोग सी, इन्हां दा समाज दे विच बहुत ही ज्यादा आदर मान कीता जांदा सी, क्योंकि इन्हां नूं संस्कृत भाषा दा चंगा ज्ञान सी। कोई भी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ जिहड़े सी बहुत सोहणे तरीके दे नाल रीड कर लैंदे सी, जिहदी वजह करके इन्हां दा समाज दे विच काफी उच्चा रुतबा सी। फिर कहंदे इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया, यानी कि पूरी ठोक सी बंदियां दी, पूरी घैंट गलबात सी इन्हां दी। ठीक है, फिर कहंदे इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, कि भगती दी जिहड़ी भगती होण लगी सी, सब तो ज्यादा भगती दी आराधना। ठीक है, भगती आराधना तुसीं मैं इत्थे लिख दिंदी हां, भगती आराधना ये किहड़े युग विच होण लगी ज्यादा, मध्यकालीन युग विच। ये तुसीं याद रखना, मध्यकालीन युग विच। ठीक है, ये पॉइंट भी तुसीं ने याद रखना। फिर ये कहंदे आ, इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशुद्ध कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। ठीक है, मतलब
ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਸਟੈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟੈਟ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਟੈਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ याद रखनिया वा। फिर ये कहते कि यही वह युग था जिसमें इस उपमा में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बस इसे करके तो मैं तुहानू NCERT पढ़ा रही हाँ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ, 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹਾਏ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ NCERT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर ये कहते मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे। याद रखना हर चीज जिहड़ी लिखनी जरूरी नहीं हुंदी, मतलब जिहड़े मुसलमान जिहड़े सीगे ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਧਰਮ ग्रंथ। मुसलमान ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, धर्म ग्रंथ मानते सी। ठीक है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे इस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ते एक लाइन जिहड़ी है उत्ते कॉन्सनट्रेट करिया करो, किसी वेले सानू सीधी स्टेटमेंट भी पूछी जा सकती है। कई शासक इस्लाम और इसके विधान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते हैं। इत्थे ना एक शब्द आ गया उलेमा, इन्हां ने इंज करके लिखिया हिंदी दे विच उलेमा। ठीक है, फिलहाल मैनू इस शब्द की पंजाबी नहीं पता, क्योंकि मैं भी इंसान ही हाँ, मतलब जरूरी नहीं है हर चीज मैनू पता होवे, है ना। उलेमा शब्द की पंजाबी फिलहाल मैनू नहीं पता, तुसी इहनू होल्ड करके रख लो, तुसी मैनू कमेंट करके याद करा दिओ, मैं इहदे बारे आपां जरूर दसांगे भी ये उलेमा दा मतलब की सी। ठीक है, फिर ये कहंदे आ कि हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली के मुसलमानों का विंदसमत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी कि इन्हां ने ना मुसलमानों दी दो तरह दी कैटागरी दसियां। ठीक है, जिहड़े मुसलमान सीगे, ठीक है, इन्हां ने दो तरह दी कैटागरी दसियां। ठीक है, एक इन्हां ने दसी आ, पढ़ते ने आपां शायद पहला भी, एक इन्हां ने दसे आ कट्टर सुन्नी मुसलमान। ठीक है, कट्टर सुन्नी मुसलमान, ते एक इन्हां ने दिते आ शिया मुसलमान। ठीक है, शिया मुसलमान। तो ठीक है, ये तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। ठीक है, जिहड़े कट्टर सुन्नी मुसलमान ही ए अपना गुरु किनू मानदे सी, ए अपना गुरु मानदे सी
ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਦਮਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਦਮਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਖਲੀਫੇ ਕੀ ਹੀ ਤੇ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਪਈ ਆ। ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਾਂ NCERT ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਆ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ, ਕਿ ਖਲੀਫੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਆਇਓ। ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾਮਾਦ ਅਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਖਲੀਫੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। क्लियर। फिर ये कहते हैं इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। इस्लाम धर्म के दो सिद्धांत दिते हैं इन्होंने। ठीक है, इस्लाम धर्म के सिद्धांत। ठीक है, इस्लाम धर्म के सिद्धांत एक इन्होंने दस्या वा हनफी ते एक इन्होंने दस्या वा शफी। जे तुहानूं आ दो शब्द पूछ लैण भी ये दो शब्द की सी, तां ये शब्द की सी? इस्लाम धर्म दे सिद्धांत सी। ये सारा डाटा जिहड़ा कि आपां 4 पार्ट दे विच कवर कीता NCERT दी बुक तो, किन्ना कुछ सानू पहले चैप्टर तो ही पता लगा। ते तुसी सोचो भी जदों इहदे तो आपां सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, जदों आपां इहदे तो सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली ते साडी किन्नी नॉलेज वधूगी। फिर चाहे सानू पेपर कितों भी आ जाए, ते जदों आपां गल करदे आ पंजाब बोर्ड दी बुक दे विच इहदे तो कुछ भी खास जानकारी सानू इहदे पहले चैप्टर दे विच नहीं दित्ती गई। मैं एक बार फिर तुहानू दस दिंदी आ भी तुहानू कोई भुलेखा ना लै जे भी असी बुक दा एनालिसिस नहीं कीता। ठीक है, भी ओहदे विच ते ओहदे विच की फर्क सी। इक्को मिनट देखो, मैं पहला भी दस्सिया सी कि इन्हां ने पहला भारतीय उपमहाद्वीप दे नां दे ते भी जिहड़े वैदिक काल विच आर्यावर्त कहंदे सी, ते महाभारत विच एक भरत राजा सी, उहदे नाम ते भारत वर्ष कहंदे सी। ठीक है, बाइबल विच होडू कहंदे सी, भी तुसीं याद रख सकदे आ। ठीक है, बाइबल जिहड़ी बाइबल नाम दा कोई धार्मिक ग्रंथ आ, इहदे विच भारत नूं होडू कहंदे सी, इह भी तुसीं याद रखना वा। ठीक है, फिर इन्हां ने भारती इतिहास दे मध्यकालीन युग दा समां दस्सिया, जिहड़े कि परिवर्तन आए, इह आपां पढ़ ही चुके आ सारा कुछ। इन्हां ने प्रमुख प्रवृत्तियां रुचियां दस्सियां कि भाषा दे विच किहड़े-किहड़े चेंज आए। जे मेनली संस्कृत भाषा बारे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिहड़ा मैं तुहानूं लिखाता। फिर इन्हां ने इतिहासक स्रोत दित्ते आ। ठीक है, पुरातत्व स्रोत दे ते हना, ते फिर इन्हां ने आ दे ते शिलालेख दे ते हाँ शिलालेख हो गए। ठीक है, आ सिक्के आ। ठीक है, ये आ वाले जिहड़े इन्हां ने 2 सिक्के दित्ते आ, ये अकबर दे राज दे सिक्के आ। ठीक है, फिर इन्हां ने इहदे विच तानसेन बारे दस्सिया, ते इहदे विच इन्हां ने इह दस्सिया आ जिहड़े इन्हां ने विदेश यात्री दित्ते सी, इह मैं तुहानूं कराते। अलबरूनी इबन बतूता इह करवाता। ते फिर इन्हां ने जिहड़े मुगल सी ਉਹ संगीत ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ पसंद करदे सी, ते अकबर दे राज दे विच तानसेन नाम दा संगीतकार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ प्रसिद्ध सी। बस ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਡ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੰਪਲੀਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ। हाँ, 7वीं क्लास की आप जियोग्राफी करते पे ये अपनी होंगी आ सोमवार, मंगलवार
ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ठीक है। फिर आपां कीता वीरवार शुक्रवार ते शनिवार आपां की कीता शनिवार आपां की कीता आपां कीती हिस्टरी केड़ी 7वीं क्लास दी। ते अपने तो कल बचदा वा संडे ते कल ने आपां पता की करना आ याद रखियो कल आपां 6वीं क्लास दी पोलिटिकल करनी आ मैराथन। टोटल 9 चैप्टर आ टोटल जेड़े आ 9 चैप्टर आ देखो आ बुक आ 6वीं क्लास दी पोलिटिकल दी जेड़े सानू अमरीका अफ्रीका रोजा पार्कस ऐदां दे सवाल सानू जेड़े पेपर दे विच आउंदे आ ਉਹ NCERT ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਟੋਟਲ 9 ਚੈਪਟਰ ਆ 2 ਮੈਰਾਥਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ 4 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਚੈਪਟਰ ਬਚਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹ ਅਜੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 8th क्लास की जियोग्राफी रहिंदी सी भी अपनी आ चुकी आ ये बुक कल ही डिलीवर हुई आ ठीक है। यानी कि अपनियां हुण 2 बुक रह गईयां वा एक अपनी रहिंदी आ 6वीं क्लास की हिस्टरी रहिंदी आ ते एक अपनी रहिंदी आ 8वीं क्लास की पोलिटिकल रहिंदी आ ठीक है। ते अपनी एक किताबां भी जल्दी आ जाणियां वा ठीक है। ते हुण आपां मिलदे आ अगली क्लास दे विच बने रहो मेरे चैनल दे नाल ठीक है। ते तुसीं की करो क्लास ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ SST ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।